अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. और आज के सेशन के अंदर बच्चों I have shared this PDF on your WhatsApp groups. मैंने आप लोग के WhatsApp ग्रुप के ऊपर ये PDF ऑलरेडी शेयर कर दिए. So we are just going to solve this PDF. इस PDF के अंदर मैंने जो expected questions हैं टॉपिक के, we are going to cover 3 topics आज के सेशन के अंदर. The first topic will be number system. The other topic will be images, sound and compression techniques, and the last topic will be internet communications. So इस टॉपिक के जितने भी expected questions हैं तो वो सारे questions हम लोग one by one solve करेंगे. So meanwhile जब हम लोग questions solve कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा, आप लोग को टेक्निक भी रिवाइज होती रहेगी कि हाउ टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चंस. So starting with, without wasting any time, starting with the first question, let's see. So the first question, bachcho, examiner is asking, what is the difference between MIB and MB? So MIB is maybe byte, that is 2 to the power 10, or 1024 bytes. And when we talk about MB, so that is megabyte, that is 10 to the power 3, or 1000 bytes. इसका प्रीफिक्स बच्चों क्या होता है मैबी बाइट का? Having binary prefix. And megabyte का the prefix is, we are having binary prefix. And same goes with KB byte, maybe byte and GB byte and so on. ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली. Now in the next part, the examiner is asking you to convert 245 in binary coded decimal format. तो बच्चों आप लोग को सिंपली क्या करना है, 2 अलग, 4 अलग, 5 अलग, and just write down the binary. Represent 2 in 4 bits, represent 4 in 4 bits, and represent 5 in 4 bits. So you can see 0010, 0100, 0101. So this is the BCD format बच्चों of. और अगर if you would like तो आप लोग मिला के भी लिख सकते हैं. इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके पास. ठीक है. Now moving further forward, अब वो बोल रहे बच्चों इसी नंबर का क्या करना है आप लोगों ने. You need to calculate the hexadecimal for this number as well. आप लोग को इसी नंबर का हेक्साडेसिमल भी कैलकुलेट करना है. So no need to worry about. Just convert this number into binary. And how you are going to convert this binary, this number into binary? So 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. So 128 plus 64 plus 32, the total sum is 255. 255 में से अगर मैं माइनस कर दूं 10, तो बच्चों this is the binary actually for 245. Now फोर बिट पेयर, 4 बिट पेयर, और हर पेयर के नीचे आप लोग क्या लिख देंगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8. So this is 15, and 15 in hexadecimal is F, and this is 5. So 5 5 रहेगा. The final answer is F5. Now
मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन यूज ऑफ हेक्साडेसिमल्स इन कंप्यूटर्स। सो देयर आर मेनी यूजेस, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं। यूज्ड टू रिप्रेजेंट MAC address. Further, another reason can be, another use of hexadecimals can be used in memory dumps. I hope you people remember these memory dumps. You studied these memory dumps in your O-levels. Whenever you want to see your memory, memory is actually in binary. But with the help of memory dumps, you can see your memory in hexadecimal format. So hexadecimal are used over there as well. They are also used in color code in HTML. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के कलर कोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स। एफ कहां से आया, ये तो बड़ा वियर्ड क्वेश्चन है अफनान। ओके बता देता हूं मैं, चलो देखो मैंने 255 45 का बाइनरी निकाला। दिस वाज द बाइनरी 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 4 plus 1. So the sum will be 245. Now, अब मैंने चार चार के पेयर बना दिए। The first pair was 1248 1248. तो सारे बिट्स को मैंने एड अप करा। 15 का हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू क्या होती है, दैट इज एफ, एंड 55 भी होता है हमारे पास। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, अब ये बोल रहे बच्चों गिव वन यूज ऑफ बीसीडी इन कंप्यूटर्स। सो हमने पढ़ा था यूज्ड टू रिप्रेजेंट नहीं नहीं बेटा अफनान कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्या 50 देखो हेक्साडेसिमल्स में क्या होता है, 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, दिस इज नॉट एक्सी, दिस इज समथिंग डिफरेंट। 11 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से, एंड 15 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ से। दिस इज हेक्साडेसिमल्स, दिस इज नॉट एक्सी। अच्छा जी, यूज टू रिप्रेजेंट decimal numbers accurately in electronic devices। ठीक है भाई, सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। अच्छा मैं देख रहा था आप लोग बड़ा इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, करते हैं। मतलब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, यू शुड नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स। देयर आर टू थिंग्स, मतलब या तो आप डायरेक्टली बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप 40 और -80 का बाइनरी निकालें एंड ऐड बोथ नंबर्स टुगेदर। सर कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे बच्चों 40 का बाइनरी निकाला, 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So 40 will be, let's make it -128. 40 will be 32 plus 8, that will be 40. Remaining bits will be set to 0. Now I need to calculate -80. So this is the binary for +40. Now I need to calculate -80. So -128, और मैंने खामोशी से यहाँ पे क्या किया, 128 -80
सो मुझे रिमेनिंग पैटर्न के अंदर क्या करना है, 48 बनाना है. So 48 it will be easy. 1 32 32 के अंदर अगर मैं 16 ऐड कर दूं, so that will be equal to 48 and that's it. And remaining bits will be set to 0. अब मैंने क्या करा बच्चों, this is the binary for -80. अगर आप इसको एड अप भी करें, like -128 plus 32 plus 16, so it will be equal to -80 के इक्वल होगा बच्चों ये. अच्छा भाई, मैं एक ग्रुप पे लिंक सेंड करना भूल गया. लेट मी सेंड. अच्छा जी, वेयर आई बॉस. सो मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया, आई क्रिएटेड, मैंने यहाँ पे -80 का बाइनरी कैलकुलेट कर लिया. दिस इज द बाइनरी फॉर -80, दिस इज द बाइनरी फॉर +40. सो नाउ जस्ट इन दोनों वैल्यूज को क्या करें, अब एड अप कर दें. 0 + 0 0 0 0 1 1 1 + 1 2, so that is 0 1 carried, so 1 1. So this is the binary बच्चों for, ये आपके पास अब बाइनरी आ गया, -40 का बाइनरी होगा ये, क्योंकि 40 -80 that will be -40. So this will be the binary for, this will be the binary for -40 का ये बाइनरी आपके पास आ गया. सो अभी तक हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे पार्ट ए बी सी कंप्लीट करें अपने. सो आप लोग को ये सब्ट्रैक्शन भी बड़ा सिंपल सब्ट्रैक्शन ही आप लोग को आना चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं जरा. यहाँ पे अब ये एग्जामिनर बोल रहा है कि व्हाट इज ओवरफ्लो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. सो ओवरफ्लो क्या होता है आप लोग के पास, मैंने यहाँ पे बता दिया. When number is so large that we cannot represent that number in given number of bits. So that phenomena बच्चों is called overflow. Example, we have 4 bits. So we cannot represent (16). For that we need 5 bits. अच्छा जी, अफनान ने एक बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर एक रेस करा है सवाल. ये बोल रहे सर कि अगर मैं -40 का डायरेक्ट बाइनरी निकाल दूं तो वुड दैट बी फिजिबल. सो बच्चों वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं, यू नीड टू शो द वर्किंग एज वेल. सो एग्जामिनर बोलेगा भाई -40 आ गया, कैसे आया, तो आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी. उसको पता होना चाहिए कि आपने पहले -80 निकाला,
फिर आपने +40 निकाला, फिर आपने दोनों को ऐड करके -40 कैलकुलेट करा है. सो यू नीड टू शो द वर्किंग एज वेल अफनान बेटा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड फर्दर, आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे अब ये सवाल आया आपके पास, ऐड 8 and 4 in BCD with working as well. So we need to show हमें 8 और 4 को ऐड करना है. So 8 in binary is 0 1, sorry my bad, 1 0 0 0. That is the binary for 8, and 4 0 1 0 0. So we just need to add 8 and 4. The result will be 0 0 1 1. So the number that we are having is 12. But बच्चों, this is not in BCD currently. ये अभी करंटली बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर नहीं है. सर क्यों नहीं है? बिकॉज बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर, इफ यू पीपल रिमेंबर, हम लोग मैक्सिमम नंबर जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज 9. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो जो मैक्सिमम नंबर आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे वो 9 है. ये तो सर 12 बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया. तो क्या करते हैं, जब भी आपका नंबर 9 से एक्सीड करता है तो यू ऐड +6. तो हम लोगों ने 6 ऐड करा यहाँ पे. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एडिंग 6 since number exceeding 9. अब इसको ऐड करें जरा आप लोग. 0 1 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 नीचे आ गया. यू नीड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, सॉरी, आपको यहाँ पे ये सेट कंप्लीट करना पड़ेगा 4 बिट्स का. तो नाउ दिस पेयर is 1 and this pair is 2. और अब ये बच्चों आपके पास बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर 12 रिप्रेजेंट आप लोगों ने कर दिया. So this is how you are going to represent, you are going to add binary coded decimal numbers. Yes, Sabha beta, we always add +6. Sir, instead of 6, नहीं, we always add +6. इस बाइनरी कोडेड डेसिमल का रूल हमें बताता है कि जब भी आपका नंबर 9 से एक्सीड करेगा ना, तो वी ऑलवेज नीड टू ऐड 6 टू. वो असल में होता ये कि 6 ऐड क्यों करते हैं. डेसिमल नंबर मैक्सिमम क्या है आपके पास, 9. हेक्साडेसिमल नंबर मैक्सिमम नंबर क्या है, 15. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6. तो आपका नंबर वापस से क्या करता है, हेक्साडेसिमल से रिवर्ट बैक करता है और वापस से क्या आता है, बीसीडी फॉर्मेट के अंदर एंटर हो जाता है व्हाइल एडिंग +6. ओके, ये था बच्चों नेम फ्यू वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस फॉर्मेट्स. ऑल्दो दिस इज थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिनर एज सच पूछता नहीं है, लेकिन चले फिर भी आप लोगों को पता होने चाहिए बच्चों. कुछ एक एटलीस्ट 2 फॉर्मेट पता होना चाहिए. SVG is one of the vector format and PDF is also one of the vector formats. And when we talk about the raster, so PNG, JPEG, or you call it JPEG, GIF, these are the
common raster images formats. रेफरेंस नहीं है रुजैन, ये मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये रेफरेंस नहीं है, ये मैंने ऐसी मेरे माइंड में क्वेश्चन आते हैं ये वाले, तो मैंने खुद ही क्रिएट किए मैं बेटा, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पास पेपर से भी पिक करे हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है मैंने जर्नली मैंने ये क्वेश्चंस खुद क्रिएट करे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, ताकि आप लोग का रिवीजन भी ओवरऑल पूरा हो जाए। अब ये बोल रहे बच्चों, राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग हायर सैम्पलिंग रेट्स। सो एक ड्रॉबैक तो ये होता है आपका हायर सैम्पलिंग रेट का, फाइल साइज will be increased. Another disadvantage for having higher sampling will be difficult to transfer file. जब फाइल का साइज होगा ज्यादा तो it will be very difficult for the user to transfer that file. Moving forward, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Differentiate between XC and Unicodes. So जल्दी जल्दी कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। XC codes are part of Unicodes. Unicodes are from 8 to 32 bits, while XC codes are 7 or 8 bits. Unicodes are used to represent almost every language of the world, while XC codes only refer to English language. Ali, I will be sharing the PDF as well. ठीक है। Now moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। Vector images are scalable. Explain this statement. So बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए why scalable का मतलब क्या होता है। If we increase or decrease the size of a vector image, the file size and quality remain same. So this is why बच्चों they are called scalable. आप उस फाइल को बड़ा करें, इमेज को छोटा करें, इमेज की क्वालिटी और फाइल साइज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द रॉज एंड कॉलम्स ओवर हियर, रॉज और कॉलम की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होती, ये आप बता सकते हैं, वो मैंने वैसे इन शॉर्ट बता दिया है कि क्वालिटी रिमेन सेम। अगर आप ये बात भी लिख दें कि डिस्टॉर्शन नहीं होती तो पिक्सलेट नहीं होती आपकी इमेज, सो दैट इज
more मतलब अच्छी vocabulary, you can write that as well. ठीक है भाई, moving forward, आगे बढ़ते हैं. Yes Malik, you can write that. अब ये बोल रहे हैं बच्चों, sampling rate increases the accuracy of sound. Draw a diagram of a wave to explain this concept. अब देखिए मेरे माइंड में ये सवाल है, ऑल्दो आज तक कभी एग्जाम में ऐसा सवाल आया नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता मैं ये सवाल जरूर देता. बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सैम्पलिंग रेट से आपकी वेव की फॉर्मेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, सो लेट्स सी. मैंने यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप छोटी सी यहाँ पे डायग्राम बना के, पहली डायग्राम के अंदर आप शो करेंगे लेसर सैम्पलिंग रेट. ठीक है, सो दीज आर द वेव्स. और अब आप सैम्पलिंग शो कर दें. And you can also mention that this is actually the quantization error. This is quantization error, जो difference रह जाता है. Quantization error. When you convert an analog wave into digital, the difference that is left is called the quantization error. और अगर ये and this is the lesser sampling. And another one will be for the greater sampling. अगर अब आप लोग सैम्पलिंग रेट बढ़ा दें, so your wave will be closer to the original analog signal. So the quantization error फिर भी होगा, लेकिन it will be very lesser, बहुत कम रह जाएगा. नहीं जवाब, आज तक कभी ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मुझे पता नहीं है अच्छा लगता है ये सवाल. में अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं बिल्कुल ही बच्चों को सवाल दूंगा, क्योंकि दिस इज प्योर कॉन्सेप्ट. बच्चे को पता होना चाहिए, ही शुड, क्योंकि आपके पास ड्रॉ करने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चंस सिलेबस में दिया हुआ है कि हम ड्राइंग के क्वेश्चंस दे सकते हैं. ऑल्दो इन लास्ट 5 years एग्जामिनर ने कभी भी ये क्वेश्चन हिट नहीं करा, लेकिन व्हाट वी कैन से, मतलब कल एग्जामिनर ये सवाल दे दे तो मेरे स्टूडेंट्स को, बच्चों, ये वेव फॉर्म बनाने आनी चाहिए. और वैसे भी आप लोग को एक कॉन्सेप्चुअली भी अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा सैम्पलिंग रेट कम होगा उतनी ज्यादा आपके पास क्वांटाइजेशन एरर होगा, उतनी क्वालिटी आपकी कम होगी. नहीं, डोंट रेफर दिस टू द फिजिक्स 1 शामिर. आपको पता है फिजिक्स में तो फिर इस तरह एक्यूरेसी और प्रिसीशन, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. लेकिन कंप्यूटर साइंस में A2 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दैट दे बोथ आर सेम. ठीक है, तो अलग अलग होता है हमारे पास. अच्छा जी, अच्छा ये वाला सवाल बच्चों अभी नीचे करवाऊंगा मैं आप लोग को, या अभी नीचे करवाऊंगा अभी आप लोग को. Okay, another question बच्चों, you just need to differentiate between thin client and a thick client. आपको इन दोनों के दरमियान क्या करवाना है, डिफरेंशिएट करवाना है. सो यहाँ पे वन बाय वन मैं सारे डिफरेंस लिखता हूँ. सो थिन क्लाइंट always relies on a connection to a remote server.
while thick client can run on its own. Another difference, thin client having less resources like RAM, processor, memory, SSD या HDD, while thick client heavily depends on local resources. In thin client, data is stored on remote servers, while in thick clients, it's stored on local disk. So this was one of the question, बच्चों, of thin versus thick clients that you should know. Example of local accessories. Example मतलब local accessories मतलब आपकी RAM, आपकी प्रोसेसिंग पावर, कोई ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो ये सब लोकल रिसोर्सेज के अंदर काउंट होती हैं अली. ठीक है समामा, आपका भी आंसर क्लियर हो गया. सर थिक क्लाइंट पे हार्ड डिस्क पे एप्स स्टोर हो सकती हैं. आशिर आप आंसर कर रहे हैं, यस दैट्स फाइन. ठीक है शामिर, आप भी आंसर ही कर रहे हैं. सो ये जो थ्योरी है ना बच्चों, ये थ्योरी आप लोगों को मैं ऑलरेडी वैसे एक जगह शेयर कर चुका हूं. सर कहां पे आपने शेयर करी है? इफ यू पीपल रिमेंबर, जो मैंने रिवीजन गाइड आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, तो वहां पे भी ये डिफरेंसेस लिखवाए मैंने सारे. सो बड़ी अच्छी तरह रिवीजन गाइड को गो थ्रू करना है, उसकी ग्रिप रखनी है, उसको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है. तो रिवीजन गाइड को अच्छी तरह करके जाएगा टू सिक्योर फुल मार्क्स अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 70% या 65 से अबव मार्क्स स्कोर करने. तो रिवीजन गाइड को बिल्कुल अच्छी तरह मेमोराइज करके जाना है आप लोगों ने. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे एक और सवाल आ गया आपके पास. नाउ ये एग्जामिनर बच्चों बता रहे, यू आर हैविंग 4 systems, 2 servers and 1 router. Connect them using star topology. So in center you will be having your router, then you will be having server 1, you will be having server 2, and then you will be having 4 systems that will be again connected to this router.
So we are done with this diagram. Okay, one advantage of star topology. So data is unicasted. मतलब बच्चों privacy of data is maintained. वन टू वन ट्रांसमिशन होती है. लाइक अगर आपके पास सिस्टम 3 सर्वर 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, सो बाकी सिस्टम ये डाटा रीड नहीं कर सकते. वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, यूनिकास्ट किया जाता है आपका डाटा. And one of the disadvantages, if centralized device, that can be a router, that can be a switch as well, goes down, whole network is down. पूरा नेटवर्क आप लोग का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. अच्छा जी बच्चों, अब ये बता रहे कि CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, वो बोल रहे आफ्टर कोलिजन क्या होता है. बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट. CSMACD इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है. सर क्यों? क्योंकि CSMACD के सवाल 9618 के अंदर अभी तक नहीं आए. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ पेपर A2 का टॉपिक था ये. A2 से टॉपिक पिक करके आप लोग के A1 के अंदर इंक्लूड किया गया है. और जब से A1 के अंदर आपके पास 2021 मई जून, 2021 अक्टूबर नवंबर और स्पेसिमेन पेपर में भी कोई सवाल CSMACD का एग्जामिनर ने इंक्लूड नहीं करा है. तो दिस इज द बेस्ट टाइम. मई जून 2022 एग्जामिनर आपके पास इंक्लूड कर सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन CSMACD में क्या होता है, या हाउ CSMACD प्रोटोकॉल वर्क्स, वेयर दिस प्रोटोकॉल वर्क्स. तो ये छोटे मोटे सवाल आप लोगों को CSMACD के बारे में पता होने चाहिए. तभी मैंने स्टैटिक भी बना दिया भाई, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेगा इस क्वेश्चन के ऊपर. अभी सवाल है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर कोलिजन, तो बता दें. बड़ा सिंपल सा टास्क है. सबसे पहला काम क्या होता है, जैमिंग सिग्नल is broadcasted to every system so that they can cease their transmission. After that, channel is cleared. After that, every system is now assigned a random waiting time. After completing waiting time, system again check for the medium to be idle again. So बच्चों, these are the steps that occurs after collision. के सारे steps बताए मैंने यहाँ पे. जैमिंग सिग्नल सेंड किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है पूरे सिस्टम को, ताकि हर सिस्टम डेटा ट्रांसफर करना क्या कर दे, सीज कर दे. चैनल को क्लियर किया जाता है. फिर एवरी सिस्टम इज असाइंड अ रैंडम वेटिंग टाइम, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर रैंडम वेटिंग टाइम
The system check again for the medium to be idle again. And this is how the process goes on. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे अब. Now we are having another question. Differentiate between IPv4 and IPv6 with one difference will be an example of the IPs. So let's differentiate IPv4. मैं अब ऐसे ही बच्चों पैरेलल में कर रहा हूँ, आप लोग पैराग्राफ की फॉर्म में कर लेगा. मैं शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर सेंटेंस लिखिएगा. IPv4 consists of 32 bits. IPv6 consists of 128 bits. Further, you should know represented in binary represented in hexadecimal. Further, 4 octets, and over here we are having 8 hextets. And एक एग्जाम्पल बच्चों कोट कर दें यहाँ पे 192.168.1.1. सो और यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल कोट कर दें FA11:11:11:1211 suppressor 1101. So अब आप आई होप अब ये आप लोग को ये आईपीज रिवाइज होनी चाहिए, इनके फॉर्मेट्स याद होने चाहिए, तभी आप लोग को ये आईपी सही समझ में आएगी. Now moving forward, MAK college is having an IP address of this. The ID manager, ID नहीं IT manager होना चाहिए यहाँ पे. मेरे टी ने चेक नहीं करा होगा. The IT manager needs to create 4 sub networks. Applying subnetting to create 4 sub networks. Name of the sub networks will be A, B, C, D. A brilliant question. जबरदस्त सवाल है बच्चों. यस हसीब मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर. आफ्टर कंप्लीटिंग मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ऑफ कोर्स. अब ये बोले बच्चों ABCD सब नेटवर्क आप लोगों को क्रिएट करने. एक आईपी एड्रेस गिवन है. सब नेटिंग इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आज तक कभी एग्जामिनर ने सब नेटिंग का क्वेश्चन नहीं दिया है. सर आप वही क्वेश्चन क्यों पिक कर रहे हैं यहाँ पे जो एग्जामिनर ने आज तक नहीं दिए? तो बच्चों दिस इज द मेन एम ऑफ दिस क्लास. मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ. मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को हर टॉपिक के, ताकि these are the questions the examiner might ask you in the examination because subnetting is part of your syllabus. एक सिंपल सा सवाल एग्जामिनर दे सकता है आप लोगों को अबाउट द सबनेटिंग. सो मेरा बच्चा किसी भी चीज में किसी भी डोमेन में बच्चों पीछे नहीं होना चाहिए. ठीक है भाई. सो आपको 4 नेटवर्क्स क्रिएट करने. अब देखिए सबसे पहले क्या करें आप लोग क्लास चेक करें. आईपी एड्रेस का क्लास कौन सी है? सर क्लास कैसे चेक करते हैं, भूल गए? सो चेक कर ले 200.30.40.0. सो मैंने यहाँ पे क्लास चेक करी. इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो आपको क्लास पता चल जाएगी. फर्स्ट ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपको आईपी एड्रेस की क्लास पता चलेगी. 1 2 4 8 16 32 64 and 128. I need to make 200. So 128 plus 64 that will be 192. 192 के अंदर अगर मैं 8 ऐड करूं so that will become 200. remaining bits will be set to 0. so बच्चों मेरा पहली 3 बिट्स जो है वो क्या पैटर्न बना मेरे पास? the pattern is 110. this means this is class C. ये कौन सी क्लास है मेरे पास? this is class C. और क्लास C के अंदर मेरे पास क्या होता है? क्लास अच्छा क्लासेस के नंबर्स अगर मैं बताऊं आप लोग को रिवाइज कर रहे हैं. सो ए का नंबर स्टार्टिंग 0, बी का स्टार्टिंग नंबर होता है आपके पास 10 और सी का स्टार्टिंग नंबर क्या होता है? 110.
अगर आप अपने पहले ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट करें, अगर आपका पैटर्न जो है वो स्टार्टिंग में ये आ रहा है, तो इससे आपको क्लास का अंदाजा हो जाता है कि दिस क्लास बिलोंग्स टू क्लास सी। ठीक है भाई, अब क्लास सी आपके पास आ गई। नाउ क्लास सी के अंदर you should remember that there are 24 bits for network and 8 bits for host। सबनेटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग होस्ट बिट्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, नेटवर्क बिट्स के अंदर। अब मुझे कितनी बिट्स यूज करनी पड़ेंगी, आई नीड टू क्रिएट 4 नेटवर्क्स। मुझे 4 नेटवर्क क्रिएट करने। पहला नेटवर्क बच्चों आई कैन गो विथ 0, another network I can go with 1, another network I can go with 2, another network I can go with 3। सो ये मेरे 4 अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, 0 2 1 2 3। अब आप लोग बताएं कितनी बिट्स चाहिए मुझे मैक्सिमम 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉरी मिनिमम। सो आई विल बी नीडिंग 2 बिट्स ओनली। 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करें जरा, दैट विल बी 1 1। सो अब बच्चों मैंने क्या किया, अपने सब नेटवर्क्स क्रिएट करें यहां पे। तो अगर मैं आप लोग के सामने पूरी आईपी लिख दूं, सो दिस आईपी बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, आई कैन नॉट टच दिस पार्ट बिकॉज दिस बिलोंग्स टू नेटवर्क। ये 24 बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क, और ये जो आखिरी की 8 बिट्स हैं, दिस बिलोंग्स टू होस्ट। तो इन बिट्स के अंदर मैं 2 बिट्स क्या करूंगा, सब नेटवर्किंग के लिए यूज कर लूंगा। सो नाउ द पैटर्न विल बिकम बच्चों, पहला मेरा नेटवर्क बनेगा, उसकी आईपी क्या होगी, 200.30.40.0। this will be, I will be assigning this IP to network A। नेटवर्क 2 क्या बनेगा, 200.30.40.1, this will be network B। 200.30.40.2, this will be network C। 200.30.40.3, and this will be my network D। so overall, अब बच्चों मैंने क्या करा, I use instead of 24 bits for the network, I use 26 bits। मैंने 2 बिट्स और नेटवर्क के अंदर क्या करी, यहां पे एड अप करवा दी। So these will be बच्चों my 4 networks। तो मैंने 4 सब नेटवर्क्स क्रिएट कर दिए, A B C D। एंड इफ यू वांट टू गो इन फर्दर डिटेल, अगर मैं इस आईपी को और भी अगर डिटेल में आपको लिख के दिखाऊं तो आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दिस इज एक्चुअली 230.40.000000। तो टोटल 8 बिट्स। तो ये बिट्स मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये बिलोंग करता है नेटवर्क ए से, और ये जो बाकी बिट्स है ये होस्ट बिट्स हैं। होस्ट बिट्स क्या होती हैं, जो एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को असाइन की जाती है। तो इस पूरे नेटवर्क के अंदर, इस पूरे नेटवर्क की एक आईडी है दिस वन, और इसके अंदर जो कंप्यूटर्स होंगे उसके अंदर फिर हम इसके अंदर रेप्लिकेट करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे, और हम लोग इसको असाइन करते रहेंगे। सर 1 1 का क्या काम था फिर, देखो ना 1 1। अब देखो नेटवर्क डी, अब नेटवर्क डी की आईपी को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं रुजैन, यहां पे लेट्स सी 200.30.40.11, फिर 00000। तो these are the host bits
और ये नेटवर्क बिट है। तो ये 1 1 बता रहे हैं मुझे कि ये बिलोंग करता है नेटवर्क डी से। ये 1 1 क्या बता रहे हैं, नेटवर्क डी से बिलोंग करता है मेरे पास ये। तो मैंने इसको यहाँ पे अभी जो अबव लिखा है यहाँ पे, तो मैंने इसको डायनरी में कन्वर्ट करके लिख दिया 3, वरना ये क्या होना चाहिए था, बाइनरी के अंदर अगर होगा तो 1 1। अगर ये आप देखो पूरा हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। सो नेटवर्क ए के लिए हमारे पास क्या होगा 0 0, नेटवर्क बी के लिए क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी 0 1, नेटवर्क सी के लिए हमारे पास क्या होगा 1 0 2, एंड 3 डी के लिए क्या होगा 1 1, और ए के लिए हमने क्या रखा था 0 0। So this is how we apply the subnetting. अफनान, ये आज तक कभी सवाल आया नहीं है बेटा, अगर आएगा तो मेरे हिसाब से 5 मार्क्स तो एग्जामिनर अवार्ड करेगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो यू शुड नो हाउ टू परफॉर्म सबनेटिंग। सिंपल सा क्लास निकाले, क्लास निकालने के बाद होस्ट की कितनी बिट्स आपको यूज करनी है वो देगा, तो आपको 4 नेटवर्क इस तरह के 4 सब नेटवर्क ही क्रिएट करने होंगे या फिर 2 करने होंगे। तो अगर 2 सब नेटवर्क क्रिएट करने, सो यू कैन जस्ट गो विद 1 बिट, सिर्फ 1 बिट के साथ आप लोग जा सकते हैं। अगर 4 क्रिएट करने, देन यू कैन गो विद 2 बिट्स। सो दैट्स हाउ सबनेटिंग बच्चों इज गोइंग टू प्ले इट्स रोल। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा एक और क्वेश्चन आ गया, -245 रिप्रेजेंट करना है, दैट इज सिंपल, 1 2 4 8 16 32 64। ओ माय गॉड, ये तो 12 बिट्स है भाई। चलें, करना है तो करना है भाई। 64 128 256 256 के बाद क्या होगा 512, 512 के बाद क्या होगा हमारे पास 1024 एंड -2048। ठीक है, तो अब हमें -245 निकालना है। शॉर्टकट बताता हूं आप लोग को जरा। शॉर्टकट क्या होगा, खाली जगह पर आ जाए जरा कहीं पे। 245 का बाइनरी निकालें, 245। So this will be 1 2 4 8 16 32 64 128 1 1 1 1 1 1 0 0। ठीक है बच्चों, दिस इज द बाइनरी फॉर 245। इसके अंदर आगे और बिट्स ऐड कर लें। अभी ये 8 बिट्स हैं, 12 बिट्स बना दें, 0 0 0 0। 12 बिट्स हो गई। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने नंबर को अपोजिट कर दिया। अब इस अपोजिट नंबर के अंदर क्या करें, +1 कर दें। तो दिस विल बिकम 1 1 0 + 1 1। अब आगे कुछ कैरी नहीं गया, तो ऑल द पैटर्न विल रिमेन सेम। एंड बच्चों, अगर मैं किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, तो दिस इज द बाइनरी फॉर -245। ज्यादा आसान मेथड था, आप गिनते रहते, कल हो जाती गिनते गिनते ना। तो दिस इज द मोर एप्रोप्रिएट मेथड। तो दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर -245। समामा, तुम्हारे नंबर सिस्टम इतने कमजोर क्यों है भाई? तुम एक दफा रिकैप करो जरा लेक्चर्स को, और उसके बाद जो है ना फिर मैं तुमसे बात करता हूँ अलग से। तो फिर भी नहीं आए ना समझ में, फिर मैं तुम्हें रिवाइज करवाऊंगा अलग से, थोड़ा सा और बड़ा करने से। ठीक है बच्चों, दिस विल बी द बाइनरी फॉर -245। ईसा भी बोलने, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। देखो मैंने क्या किया ईसा, मैंने 12 बिट्स के अंदर 245 निकाल दिया। 245 क्या होगा, यही होगा ना, आगे निकाल लो। 5 256 512 1024 एंड 2048। मैंने पॉजिटिव 245 निकाल लिया।
This is the pattern for positive 245. 245 का मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम लोग नंबर को अपोजिट कर देते हैं. कॉम्प्लीमेंट अपोजिट मतलब अगर ये 0 था तो 1 कर दिया, अगर ये 1 था तो 0 कर दिया, तो मैं नंबर को अपोजिट कर दिया. और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इट बिकम्स टूज कॉम्प्लीमेंट. मैंने जब 1 ऐड करा तो द फाइनल नंबर वाज दिस वन. मेरा फाइनल नंबर ये आया. तो जब मैं किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वो नंबर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है. तो नाउ दिस नंबर बिकम्स -245. तो हमें 200 -245 ही निकालना था, तो हमारा पैटर्न बन गया. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड. कन्वर्ट द फॉलोइंग इन हेक्साडेसिमल इनटू डाइनरी. अच्छा जी, एफ का बाइनरी 1111, जीरो का बाइनरी 0000. डाइनरी में कन्वर्ट करना है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. तो बच्चों जस्ट ऐड कर ले सारे नंबर्स. सो दिस विल बिकम 240. अनदर वन बच्चों, कन्वर्ट द अनसाइंड बाइनरी इनटू डाइनरी. सो दैट सिंपल. अनसाइंड मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. 1 0 1 0 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. सो एड अप कर ले सारे नंबर्स. 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 28. 128 में 32 ऐड करें, सो दिस विल बिकम 160. 160 में 15 ऐड किया तो 175. अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो प्लीज काइंडली देख लेगा. नो नो ईसा, बिल्कुल भी नहीं. बीसीडी इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. दोनों जमीन आसमान का फर्क है, अलग अलग टॉपिक है बिल्कुल. प्लीज मिक्स नहीं करो दोनों को, ठीक है. अच्छा जी, अगले पार्ट में बोल रहे हैं बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग बीसीडी इनटू डाइनरी. सो बीसीडी के अंदर क्या होता है? 4 4 बिट्स के पेयर बनते हैं. सो 4 बिट का पेयर, अगेन 4 बिट्स पेयर एंड अगेन 4 बिट्स पेयर. 4 4 बिट्स के पेयर बन गए. हर पेयर के ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो 1248 1248 1248. अब जहां जहां 1 है उनको ऐड कर लो. दिस विल बिकम 8 5 एंड 3. सो 853 853 आ गया भी आंसर. दिस इज द बीसीडी. सो वी कन्वर्टेड दिस बाइनरी कोडेड डेसिमल इनटू डाइनरी. हमने डाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया. उजैन क्या सवाल है तुम्हारा? तुम बोलो, तुम्हारा जवाब नहीं दे रहा मैं. लेट मी चेक. नहीं भाई, अभी बहुत बड़ा तुमने सवाल लिखा है, बाद में बताऊंगा. आगे बढ़ते बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, Annie is downloading a sound file from web server. She had the choice of sampling rate. दो choices थी. Before she downloaded the file, a sound file. Explain the difference between the two sound files stored on the server. So sampling rate है ये आपके पास. File has higher sampling rate greater will be the quality sound
will be more closer to actual sound less quantization error, but the file size will be larger. ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया भाई सारा स्टफ. मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब convert the following binary into binary coded decimal. So 1 का क्या होगा भाई, 0001, 0 का 0000, 5 का 0101 हो गया. Convert the following 2's complement into binary. So this means 1 0 1 1 1 1 1. How many ones? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. So बच्चों, the pattern will be 1 2 4 8 16 32 64 and minus 128. सर minus 128 क्यों लगा दिया आपने? Because the number is in 2's complement. Number 2's complement में, तो 2's complement के अंदर most significant bit is a sign bit. तो अब बच्चों एड अप कर ले जरा. minus 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. तो मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास. इट शुड बी माइनस 63 होनी चाहिए शायद. मुझे कंफर्म करें आप लोग जरा मैक चैट के ऊपर लिख के, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू. क्या वैल्यू आ रही है भाई? कोई भी बच्चा बता दे मुझे जल्दी से, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. शमाइला बता रही है -65, मोहिब बता रहे -65, शमाइला -61. ये दो दो अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? माइन, यस आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ. एहसन ने बता दिया, एहसन, इस्मा ने भी बता दिया हमें. आई कैन ट्रस्ट मोहिब. हाँ, आई कैन ट्रस्ट मोहिब. सो -65 इज द आंसर बच्चों. -65 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ठीक हो गया. आई कैन ट्रस्ट भाई, आप लोग को मैं ट्रस्ट करता हूँ. सही है, सबको ट्रस्ट करता हूँ. कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डाइनरी. हेक्साडेसिमल या डाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक नंबर दे रहा है भाई. ऐसे सवाल भी आते हैं भाई. ए का बाइनरी 1010, बी का बाइनरी 1011, 1248 16 32 64 एंड 128. सो बच्चों एड अप कर लो जरा. 128 plus 32 plus 8 plus 2 plus 1. So what will be the value? मुझे डाइनरी वैल्यू बता दें. वन 171. दो आंसर सेम आ गए. इस्मा एंड शामिर के दोनों के आंसर सेम है. तो दिस मींस बच्चों यही वैल्यू होगी हमारे पास, 171. ओके सर. क्लास बच्चों यहाँ पे कोई एक सवाल आ गया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर यूजेस एक्सी कोड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स. ईच कैरेक्टर is assigned a unique code
these codes are later converted into binary and stored in computer. Convert the following string into XC code B. So B is 66, E is 101, and D is 100. सही ना, यही होगा बच्चों, और क्या होगा? Give the binary XC code for the character H. A अगर 65 है, B 66, 7, 8, E 69. So A, B, C, D, E. F will be 70. A, B, C, D, E, F, G, H. तो G will be 71 and H will be 72. तो H का कोड क्या होगा? 72 होगा. हफमैन कोडिंग सिलेबस के अंदर पार्ट नहीं है आशिर. हफमैन कोड इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस. मैंने फिर भी आई थिंक कुछ ग्रुप्स को करवा दिया था, बस एक नजर देख लेगा उसको, दैट्स मोर देन फाइन. सिलेबस का पार्ट नहीं है. आरएल इज पार्ट ऑफ सिलेबस. ठीक है. 72. अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू दीज क्वेश्चंस, मैं आखिरी क्वेश्चन पहले करवा दूं जरा. अब ये बोल रहे बच्चों, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी सीक्वेंस. ऐड करना है, ठीक है, जरा ऐड करते हैं. 0 + 1, 1, 0 + 1, 1, 0 + 0, 0, 1 + 0, 1, 1 + 0, 1, 1 + 1, that is 2. बाइनरी में 2 हम कैसे लिखते हैं? 0 over here and 1 will be carried. Again 1 + 1, that is 2. 0 here, 1 carried. 1 + 0 + 0, that will be 1. So this is the binary addition for this binary sequence. अरसलान गलत एडिशन करके बता रहे हो तुम मुझे, हैं? अच्छा जी, अब ये बोला अगले पार्ट के अंदर, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी सीक्वेंस. अब सब्ट्रैक्ट करना है, जरा करते हैं. 1 - 0, 1 बचा. 0 - 1, 0 - 1 सर पॉसिबल नहीं है. कैरी ले लो. किससे कैरी लोगे? ये अगला भी 0 है, तो ये इसको कैरी करेगा. अब इसने जब कैरी लिया, ये हो गया बच्चों 2. 1 0 क्या होता है? 2 होता है. और ये खुद क्या हो गया? 0 हो गया. ये खुद क्या हो गया? 0 हो गया ये आपके पास. मैंने ये वाला बिट, सॉरी, मैंने इसको 1 किया था, मैंने ये 0 क्यों हो गया? हाँ, वेयर आई वाज. तो बच्चों इसने इससे कैरी लिया, ये क्या हो गया? 2, 1 0, 2. अब इसने इसको एक कैरी दे दिया 1, तो ये भी 1 0 क्या हो गया? 2. और ये क्या हो गया? अब ये 1 बचा है. मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप लोग को ये वाला करवाता हूँ सवाल, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्शन में, और अच्छे अच्छे बच्चों ने सवाल गलत किया हुआ है.
अच्छा जी, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है हमें, माइनस करना है। सो 1 माइनस 0, सर 1 बचा, 0 में से माइनस नहीं हो सकता, इसने इसको एक कैरी दिया, ये खुद क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 2 हो गया, इसने इसको एक कैरी दिया, अब ये 2 नहीं, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 बचा सर। तो अब 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। ये चीज देख लेगा जरा, ठीक है। सो 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1, 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, इसने इससे कैरी लिया, 2 माइनस 1 1, और जब इसने कैरी लिया 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया। सो दिस इज द बाइनरी फॉर्म फॉर दिस सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अभी बोले बच्चों एक और क्वेश्चन के अंदर आपको एक बाइनरी आईपी एड्रेस गिवन है, IPv6, वो बोले राइट डाउन द फुल फॉर्म विदाउट एनी कॉम्प्रेशन बीइंग अप्लाइड। सो कॉम्प्रेशन, एक सप्रेसर लगा हुआ है, कितने हेडसेट्स होते हैं सर, 8 होते हैं सर, सिर्फ यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे एक 2 के अंदर भी मिस है, तो मतलब 00AB कॉलन 0000 0000 0000 0000 000 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 7, एंड द लास्ट वन वैसे ही रहेगा, कॉलन 2 3 4 5, ठीक है, 8 एक्सेट्स। तो विदाउट कॉम्प्रेशन मैंने आईपी एड्रेस क्या किया, यहाँ पे लिख के दिखा दिया आप लोगों को। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंशिएट बच्चों ये नोट से देख लेगा, खुद ही पढ़ लेगा, स्टैटिक और डायनेमिक आईपीस के दरमियान डिफरेंस, ये भी मैंने लिखवाया है, रोल ऑफ डोमेन नेम सर्वर। सो अब ये थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा देख लेगा नोट से। ये आखिरी सवाल करवा देता हूं मैं आप लोगों को और फिर हम लोग बच्चों बस आज का सेशन ऑफ करेंगे। डिस्क्राइब यूजिंग एन एग्जांपल हाउ अ टेक्स्ट फाइल is compressed using RLE. So बच्चों आप लोग सेम कीवर्ड्स पिक करते हैं, लाइक A is being repeated 3 times, 1 2 3 4 5 6 7, B is being repeated 7 times, and Z is being repeated 4 times. So आप सीक्वेंस पिक करते हैं कैरेक्टर्स के, और आप उनको क्या करते हैं, कैरेक्टर की सीक्वेंस पिक करके आप लोग बता देते हैं कि वो कितनी दफा आपके पास रिपीट हो रहा है। इसको अपनी वर्डिंग में अब आप लोग एक्सप्लेन कर लेगा। Explain why run length encoding will sometimes increase the file size of the text file when we do not have same character sequence. In that case, instead of compression, file size will be increased. एग्जाम्पल भी दे दें, लाइक ABCD। अब आप इसको अगर कॉम्प्रेस करने जाओगे तो इट विल बी A1 B1 C1 D1। तो पहले 4 कैरेक्टर थे, अब 8 कैरेक्टर हो गए। सो दिस इज द केस कि अगर सेम सीक्वेंस नहीं आ रहा आपके पास, तो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रेशन आपकी फाइल साइज क्या होगी, इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के साथ बच्चों हम लोग आज अपना यहाँ पे पहला सेशन
ऑफ करेंगे। अगले सेशन के अंदर जो मैंने टॉपिक पिक किए हुए उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोग पास पेपर्स के या कुछ मेरे बनाए हुए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आगे मूव करते रहेंगे। एंड अभी हम लोग पेपर 1 कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी विल बी परफॉर्म फॉर पेपर 2 एज वेल। पेपर 2 के भी मैं आप लोगों को मल्टीपल और क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप लोग को और ज्यादा प्रैक्टिस हो। ऑल्दो यू गाइस डिड जिन बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं, यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। आई एम रियली हैप्पी विद मैनी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फ्यू। कुछ बच्चे अभी भी लैग कर रहे हैं, अभी भी वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी हुई, लेकिन यू हैव टाइम बच्चों अभी। सो मैं भी आप लोगों के साथ लगा रहूंगा, आप लोग को भी मेहनत करनी है। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।